Namaste, hello, and welcome to TV9 Network, India's #1 news network. I'm your digital host, Priyanka Deo. Today we have a very special event, a media soul-searching roundtable with eminent personalities representing media and civil society, as well as stakeholders from all areas of society joining in. May I now request our CEO, Mr. Barun Das, to deliver the welcome address. Thank you, Priyanka. When you think everything is someone else's fault, you will suffer a lot. When you realize that everything stems only from yourself, you will learn both peace and joy. I take these words of revered Dalai Lama very seriously, and I believe that if it is to be, it is up to me. Television news media today finds itself in some kind of a credibility crisis. We have heard broadcast media blaming the external ecosystem for its current unhealthy state. The tyranny of the TRPs, the demands of the advertisers, the pressure of politics, the grace of governments, and of course the burden of the balance sheet. Accepting these explanations of externally induced business imperatives is to accept that journalism is a helpless and a hopeless underdog, not the most potent weapon of free speech. So we should necessarily reject that explanation. I think, as Dalai Lama suggests, the response to correct must come only from within rather than without. Clearly, it is time for some introspection to accept that course correction is needed. Nothing is perfect, and every problem has at least one solution. The TV9 Media Soul Searching Roundtable is a small effort to trigger that introspection. This humble effort from India's #1 television news network is not because we are blemishless. We do acknowledge our share of the discredit that has accrued to the industry, but because somebody must bite the bullet to initiate the discourse on course correction. Intent is the first right step. Personally, too, I've always believed that content and commerce don't clash and conflict. They conflate and complement each other. Yes, business imperatives are undeniable, especially for private media houses. But the news organization matrix is all about respect, reference, rating, and then revenue, particularly in this order. Today's some top journalists of India, including TV9 editors and myself, will introspect on how to halt this drift in the media. We will also take all questions from civil society stalwarts on why things have come to such a pass and how to steer to sanity. Mr. Rahul Dev, eminent journalist, will be moderating this roundtable. But before that, I'm looking forward even more to the keynote address of Sri Prakash Javadekar ji. Because as the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, he's always guiding us in how we emerge out of this crisis. The Supreme Court of India seems to have set its sight on a statutory regulatory authority. If that view prevails, the Honorable Minister will have a critical role in midwifing such an authority. It is in this context that I have noted with relief and respect the Honorable Minister's repeated assertion that the government has no role in regulating the media. He believes in being a facilitator without being an interventionist. This belief is founded on the conviction in the principle of freedom, press freedom, and the personal sacrifice for the cause. Let me tell you why I say so. Firstly, Sri Javadekar was familiar with journalism and its power as change agent from his formative years. His father, Sri Keshav Krishna Javadekar, was a journalist with Kesari, the Marathi newspaper founded by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Secondly, active in politics since college, Sri Javadekar stood up for upholding the freedom of the press during the emergency and even went to jail for 16 long months for protecting that right. No wonder the minister's passion for a healthy, credible media is so deep-rooted. With that, ladies and gentlemen, I invite Sri Prakash Javadekar, Honorable Minister for INB, to deliver his keynote address to inaugurate the TV9 Media Soul Searching Roundtable. Thank you very much. TV9 राउंड टेबल का उद्घाटन के समय मुझे बहुत हर्ष हो रहा है
क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष, टीवी 9 के सभी संस्करण, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, वो सभी लोकप्रियता के शिखर पर है। और टीवी 9 भारतवर्ष ने भी नेशनल चैनल के रूप में आने के बाद जिस तरह से धमाका उठाया है वो काबिले तारीफ है। लोग पसंद क्या करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, और लोगों की पसंद को भी एक आकार देने का काम भी मीडिया का होता है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए टीवी 9 का मैं पहले तो बधाई देता हूं। इस कोविड के समय में हम वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं सब, उससे दो फायदे हो रहे हैं कि समय पर कार्यक्रम शुरू होता है, समय पर ख़त्म होता है, लोग उतना ही बोलते हैं जितना उनसे उम्मीद है, और एक नुकसान मात्र है कि जो प्रत्यक्ष संवाद का आनंद आता है वो नहीं मिलता। लोग सामने बैठे हैं, वो देख रहे हैं, हम उनसे संवाद कर रहे हैं, उनके आंखों में आंखें डालकर संवाद कर रहे, ये सुख अब नहीं मिल रहा है। लेकिन टीवी पर अलग परिणाम हुआ कोरोना का, और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पे अलग हुआ। घर में ही बैठे लोग ज़्यादा समय तो टीवी ज़्यादा देखने लगे, अपने अपने रुचि के अनुसार देखने लगे, तो ये टीवी के दुनिया का फायदा हुआ। लेकिन समाचार पत्रों में ये अफवाह फैल गई सोशल मीडिया के द्वारा कि समाचार पत्र हाथ में लेने से ही आपको कोविड हो सकता है। इससे समाचार पत्र आज भी उबर नहीं पा रहे हैं, और आज भी बहुत सारे समाचार पत्रों की सर्कुलेशन आधे से भी कम है। तो ये जो परिणाम हुआ है, मैं तो पहले विज्ञान की अपील करूंगा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समाचार पत्र को छूने से कोविड होता है, नहीं होता है। और किसी भी वस्तु को हम छूते हैं, काम करते हैं, और अगर आँख में, नाक में या मुंह में हाथ लगाना है तो उसके पहले सैनिटाइज़र से साफ करना है, इतना सिंपल है। मास्क हमेशा लगाना है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं तो मास्क नहीं लगाया है क्योंकि मेरे आसपास 10 फीट पे कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन नहीं तो मैं हमेशा 24 घंटे लगाता ही हूं। तो ये जरूरी है। अब जहां तक मीडिया की आज़ादी है, जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि हम तो लड़े मीडिया के आज़ादी के लिए, मैं विश्वास करता हूं मीडिया पर, और मीडिया सही पक्ष उठा सकता है, और उठाने से जनता का प्रबोधन होता है, ये भी उनकी एक जिम्मेवारी है, ये मैं मानता हूं। तीसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है कि आज का ही एक इंसिडेंस बताता हूं, फिर जो 3-4 क्राइसिस है वो बताऊंगा। आज मैंने अभी पढ़ा कि एडिटर गिल्ड ने सरकार के एडवाइजरी पर अपनी नापसंदगी दर्ज की है। वो इसलिए की है कि उसमें फॉरेन कंटेंट कोई भारतीय समाचार पत्र छापेगा तो जिम्मेवारी उसकी होगी, ये उसमें निर्देश दिया गया है। पहले तो ये निर्देश प्रेस काउंसिल ने दिया है, सरकार ने नहीं। और प्रेस काउंसिल में मालिकों के भी प्रतिनिधि है, संपादकों के प्रतिनिधि है, काम करने वाले पत्रकारों के है, फोटोग्राफर के है, संसद के है, बाकी सभी व्यवसाय के सभी स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मिलके ये निर्णय किया कि ये केस ऐसी है, 2 साल पहले एक बहुत प्रमुख अखबार ने एक बहुत बड़े मसले छापे, जो फॉरेन जर्नल के वैसे का वैसा हूबहू छापा। छापने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन छापने के बाद वो आपका कंटेंट बन जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉरेन जर्नल है इसलिए, अरे आपने छापा है तो आपकी जिम्मेवारी है। बस यही एडवाइजरी है। लेकिन उस पर भी इशू बनाते लोग, और एडवाइजरी का
खिलाफत करते हैं तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। ये हमें समझना चाहिए कि जैसे मुझे समझाइए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो सिनेमे आते हैं मैं भी देखता हूँ, कुछ बहुत अच्छे, कुछ मध्यम, कुछ बुरे और बहुत बहुत ही बुरे ऐसे आते हैं। तो क्या करें? भारतीय सिनेमा कोई भी निकाले अच्छा या बुरा, उसको सेंसर के सामने जाना पड़ता है। सेंसर जो कट बताता है वो डिबेट होता है, अपील कर सकता है, लेकिन उसको मानना पड़ता है और सर्टिफिकेट के बिना प्रदर्शन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है। भारतीय टीवी पर सीरियल चलती है तो सीरियल के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, लेकिन 70 टीवी के चैनल्स ने इकट्ठा आकर एक एनबीएसए तैयार किया है और उसके प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस सिकरी है और कोई भी शिकायत कर सकता है वहाँ, और वहाँ अगर कोई गलती पाई तो उसको माफ़ी मांगने के लिए कहते, दंडित करते हैं, बहुत सारे सजाए का प्रावधान है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन का नमूना है। लेकिन ओटीटी में वो भी नहीं। तो ना सेल्फ रेगुलेशन ना सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था, ऐसा कैसे चलेगा? एक देश में दो पद्धतियां नहीं चलेगी ना। एक पद्धति है तो सबको एक ही पद्धति का स्वीकार करना पड़ेगा, यही तो कानून है। कानून में दो तरह थोड़ी होती है, कानून सबको समान होता है। तो ये भी एक विचार है। रोज मेरे पास सैकड़ों पत्र आते हैं, शिकायतें आती है। हम इस पर जरूर विचार कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब ये विषय कंटेंट न्यूज़ पोर्टल हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, ये अब आईएनबी मिनिस्ट्री के पास आया है। तो इसके संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छी नीति सामने लाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे। तो ये हम कर रहे हैं। दूसरे तरफ मैं हमेशा मानता हूं कि आज़ादी अक्षुण्ण है, लेकिन आज़ादी कोई भी हो इतनी उच्छृंखल नहीं हो सकती कि उसका कोई बंधन ही नहीं हो, कोई सीमा ही न हो। हर आज़ादी को, स्वतंत्रता को कुछ बंधन होते हैं, जो बंधन सामाजिक और देश की स्थिति पर निर्भर होते हैं। और उसमें हमारे यहाँ भी हम मानते हैं कि उसमें भी एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन होता है। प्रेस काउंसिल उसी का नाम है। और प्रेस काउंसिल अगर कोई गलत करता है तो उसको वार्निंग देता है, माफ़ी मांगने को लगाता है, बाकी सारी प्रोविजंस है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। आज न्यूज़ पोर्टल्स बने हैं जो इंटरनेट पर ही होते हैं, वो समाचार पत्र ही है, लेकिन न्यूज़ पोर्टल है, टीवी ये प्रिंटेड सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए उनको प्रेस काउंसिल नहीं। ऐसा कैसा होगा? सबको समान न्याय होना चाहिए। ये हम काम करना चाहिए, ये मेरा एक विश्वास है। दूसरी बात यह है कि आज़ादी को एक जिम्मेवारी भी होती है। हमारी न्यूज़ से समाज पर क्या परिणाम होगा और उससे क्या तत्वों को बल मिलेगा, ये भी कभी कभार देखने की ज़रूरत होती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि एवरी फ्रीडम हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो जब तक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम नहीं होता तब तक उसका उपयोग नहीं होगा। और इसलिए आज आप TV9 भारतवर्ष के राउंड टेबल में सब लोग जमा है। मैं सबका स्वागत भी करता हूं, क्योंकि यही तो मौका है कि चर्चा करें। वादे वादे जायते तत्वबोधा, तत्वबोध उसी से होता है जब हम चर्चा करेंगे, एक दूसरे के विचार को जानेंगे, समझेंगे, अच्छे सुझावों को स्वीकार करेंगे। अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से उससे एक फाइनल नवनीत निकलता है। वो नवनीत ही लोकतंत्र को मजबूत करता है।
इसलिए आज़ादी को बरकरार रखते हुए अपने मन की जो नीति होती है उसके अनुसार बंधन कुछ न कुछ स्वीकारने पड़ते हैं, वो स्वीकारने चाहिए और उसकी मर्यादा में पूरी आज़ादी का उपयोग करना चाहिए। सरकार पर टिप्पणी करनी है, कोई किसी ने रोका नहीं है, करिए। मुद्दों पर जितनी टीका टिप्पणी करनी है, व्यंग करना है, कर सकते हैं, लेकिन झूठी अफवाह फेक न्यूज़ तो नहीं दे सकते ना। पहले पेड न्यूज़ की चर्चा होती थी, आज तो मुझे फेक न्यूज़ की चिंता हो रही है, क्योंकि फेक न्यूज़ के कारण लोगों का विश्वास ही उड़ जाता है और लोग किसी एक गलत चीज़ पर ही विश्वास रखने लगते हैं। और अंत में अभी जिस तरह से सेंसेशनलाइजेशन मैं टीवी चैनल्स पे देखता हूं, वो निश्चित मेरे मन को पीड़ा देता है। ये जर्नलिज्म की कौन सी तरह है मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह से टीआरपी होता है ये भी मुझे आश्चर्य लगा। एक्चुअली इश्तिहार देने वाले और इश्तिहार दिखाने वाले, इन दोनों का आपसी मेल है और उन्होंने तय करना है किसको कौन सी कितनी जायरा इश्तिहार देना है, तो उसमें हम क्यों पड़े। इसलिए हमने पूरा समर्थन दिया और ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स ने इकट्ठा आकर बार्क नाम की एजेंसी बनाई। ये बार्क अगर उसका रेटिंग पे भी विवाद होता है या उसके रेटिंग के विवाद के पश्चात उसमें टीआरपी मैनिपुलेट करने के भी आरोप होते हैं, सत्य कितना है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन 50,000 ही मीटर है और एक्चुअली आज 17-18 करोड़ से ज़्यादा टीवी है, तो 18 करोड़ का सैंपल 50,000 में कैसे आएगा। तो वो मेरे मन में तो टेक्नोलॉजिकली अब करोड़ों लोगों का 2-वे पाथवे है अवेलेबल, तो कौन क्या देख रहा है समझ सकता है, प्राइवेसी का इशू भी एड्रेस कर सकते हैं। तो लोग ज़्यादा सैंपल बेस होगा तो कोई मैनिपुलेशन का चांस ही नहीं रहेगा। और इसलिए भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है जो टीआरपी के सिस्टम का भी अध्ययन करेगी और नया क्या अच्छा काम कर सकते हैं जिससे कि ये बेस ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है और एक निर्दोष तरीका कैसे आ सकता है, यह हमारी कमेटी बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। देखो, सरकार कोई बॉस नहीं है और सरकार कोई दंड लेकर खड़ा नहीं है। सरकार के पास दंड जरूर है, लेकिन वो चलाने के लिए नहीं है। उससे एक व्यवस्था बनी है, इसका वो एहसास है और उस व्यवस्था के एहसास को लेकर हमें आगे बढ़ना है। ये अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि मीडिया की आज़ादी सार्थक होगी और मीडिया की आज़ादी सही मायने में लोकतंत्र को मजबूत करेगी और लोगों को मजबूत करेगी। आखिर जनता को एम्पावर करना यही हमारा मूल काम है। इतना ही आज के दिन पर मैं कहूँगा और TV9 भारतवर्ष के इस सम्मेलन को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उद्बोधन के लिए। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा और अपने दर्शकों का सबसे पहले स्वागत कर लूं। मैं समझता हूं कि मीडिया उद्योग में ये पहला मौका है जब एक मीडिया समूह आत्ममंथन के लिए अपने को उसमें वो जुड़ रहा है, शामिल हो रहा है और अपने इस आत्ममंथन को दर्शकों के सामने, समाज के सामने रख रहा है। ये अपने भीतर झांकने की कोशिश है, न सिर्फ अपनी आँखों से, अपनों की आँखों से, लेकिन समाज के प्रमुख वर्गों के प्रमुख लोगों की आँखों से और उनकी समझ से भी, ताकि हम समझ सकें कि वो हमको कैसे देखते हैं, हमारी कमियों को, अच्छाइयों को, और हम अपने आप को कैसे देखते हैं। और इस तैयारी के साथ कि जहाँ हमसे गलती होगी हम उसको स्वीकारेंगे, हम त्रुटिहीन नहीं हैं। मीडिया की प्रकृति ही ऐसी है कि उससे गलतियाँ होती हैं। हमसे अपेक्षा ये होती है कि अब एक साथ हम इन्वेस्टिगेशन भी करें, जांच भी करें, हम अदालत में भी जाएं, हम अपना
वाद भी रखें और हम ही न्यायाधीश की तरह हम भी कुछ दो टूक निर्णायक खबर भी और तथ्य भी लोगों के सामने रखें। तो ये कई तरह की भूमिकाएं एक साथ हमको निभानी पड़ती हैं कम से कम समय में, उसमें चूक स्वाभाविक है और हम मनुष्य हैं, मनुष्य की ही बनाई हुई ये सारी व्यवस्था है, इसलिए गलतियां उसमें स्वाभाविक हैं, होती रही हैं और होती रहेंगी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन समय समय पर अगर हम अपने आप को जांचते रहें, परखते रहें और अपने आप को अपनी ही कसौटियों पर कसते रहें तो हमें लगता है कि हमसे गलतियों की कुछ कम होंगी। और आज सारे मीडिया के सामने जो एक समाज में प्रश्न है, एक जिस तरह से वो कटघरे में खड़ा हुआ है, उस पर हम चाहते हैं कि हम एक बार सबकी एक ऐसा गहरा आत्ममंथन करें और अपने आप को खोलें, समाज के लिए भी और अपने लिए भी। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा TV9 नेटवर्क के CEO वरुण दास से, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी जो मुद्दे उठाए हैं, तो जो मुद्दा वरुण अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है हाल के दिन में, वो TRP का है। अभी प्रकाश जी ने उसकी चर्चा की खूब, और TRP का चक्कर, TRP को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उन्होंने उसका जिक्र किया, बार्क का जिक्र किया, रेटिंग्स का जिक्र किया। तो ये बात हमको ले जाती है इस वैश्विक मीडिया के सामने जो एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। एक तरफ मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी है, खबरें देने का धर्म है, लोगों को, समाज को सच्ची खबर पहुंचाने का धर्म है, और दूसरी तरफ उसके पास आर्थिक लाभ कमाने की अनिवार्यता भी है, जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। तो इन दो अलग अलग पार्टों के बीच में ऐसा सबको अब लगने लगा है, भारत में भी और दुनिया में भी, कि अच्छी पत्रकारिता हम कर सके तो हमें एक नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत है। आपने इस बारे में काफ़ी मौलिक सोच, आपने शोध भी किया है, चिंतन किया है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी राय में क्या वो तरीके और कौन सी वो राह हो सकती है, नया बिजनेस मॉडल हो सकता है, जिससे मीडिया अपने ये दोनों काम ठीक से कर सके। Rahul ji, thank you very much. As I said in my opening remarks, I think the TRP or the ratings is an imperative of business. Finally, we are private business organizations, but I firmly believe that respect, reference, rating, revenue, and that's the order. I think if you command respect, which is through credibility of your content, you'll be referred more, which is the impact, and thereafter your ratings will go up, and if your rating goes up, you get more revenue. So if we follow this and we firmly believe this, I think there is an autocorrect already in place. So that is how I will submit this answer to you. धन्यवाद वरुण। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ आज एक बहुत बड़ी संख्या में बहुत विशिष्ट लोग मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय बारू, सोनल मानसिंह, सुधांशु त्रिवेदी, ये सारे जाने माने नाम हैं, परिचय में विस्तार में दूंगा बाद में। गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, राजेश कालरा, प्रसून जोशी, कुमार विश्वास, सब जानते हैं, यशवंत देशमुख, पवन दुग्गल, SY कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रंजना कुमारी जी, CB पांडे जी, और ये सारे नाम आप समझ गए होंगे कि ये कितना भारी भरकम पैनल जिसे हम कहते हैं वो हमारे साथ हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में रह चुके हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या निभा चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो समाज के दूसरे वर्गों में काम करते हैं और उनके पास कुछ सवाल हैं, कुछ टिप्पणियां हैं मीडिया को लेकर। तो हम सीधे चलते हैं, मैं समझता हूं जो जिन्हें हम सब पहचानते हैं, हिंदी के सबसे लोकप्रिय वैश्विक कवि कुमार विश्वास के पास। तो कुमार, आप एक चिंतक भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और कवि तो हैं ही आप। तो आप मीडिया को कैसे देखते हैं, संक्षेप में? राहुल जी, पहले तो इस पहल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष का कि उसने आत्मनिरीक्षण के इस पर्व का आयोजन किया। दुखद ये है कि मेरी जैसी पीढ़ी के लोग दो तरह के संपादक मंडलों से रूबरू हुए हैं। मेरी चेतना का विकास राजेंद्र माथुर, राहुल बारपुते और प्रभास जोशी जी को पढ़कर हुआ है, और इन दिनों जो मुझे संपादक देखने पड़ रहे हैं, चाहे वो टीवी में हो चाहे अखबार में हो, मैं उन्हें नाम लेकर इस बहस को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहूँगा। मीडिया में एक दर्शक के नाते बाहर खड़े होकर मुझे दिखता है, एक पाठक के नाते, कि रेफरी पहलवान बन गया है।
रेफरी का काम है कि वो बाहर खड़ा होकर सीटी बजाए, दोनों पक्षों को नियम समझाए और दर्शकों को, अगर वो कमेंटेटर भी है साथ साथ, तो वो बताए कि अब ये दाव चल रहा है, अब ये दाव चल रहा है। लेकिन यहाँ कमेंटेटर ही रेफरी हो गया है और रेफरी ही पहलवान बन गया है। वो अपने गोल सेट करता है, उसी हिसाब से खबरों को प्लेस करता है। यानी कि पत्रकारिता के विचार से विचार की पत्रकारिता पर हम पहुँच गए हैं। और ये नुकसान दर्शक का तो है ही, संस्थान का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जिस छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, वहाँ हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के एक सामान्य से पत्रकार, जो अपनी प्रतिभा में बहुत असामान्य थे, लेकिन उस कस्बे के पत्रकार थे, स्वर्गीय शिव कुमार गोयल जी। अगर वो किसी दरोगा के रिश्वत लेने पर या किसी काम को गलत करने पर एक छोटी सी खबर भेज देते थे, तो अगले दिन उस दरोगा की तलब हो जाती थी, उसका ट्रांसफ़र हो जाता था, वो लाइन हाजिर हो जाता था। आज मीडिया के स्वयंभू न्यायाधीश अपने आप एक आरोपी गढ़ते हैं, उसके खिलाफ कुछ आरोप बनाते हैं, फिर एक पैनल खड़ा करते हैं और सामने वाले को कुछ भी नहीं होता है। दोनों अपनी अपनी पीआर एजेंसी लगाकर अपने अपने पक्ष को सत्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो संकट दर्शक का नहीं है, संकट संस्थान का भी है, जिस पर उसे ध्यान देना पड़ेगा। और एजेंडा फिक्सिंग तो सदा से होती है। पांडव जीत गए तो सुयोधन दुर्योधन कहलाने लगा। अगर विजय जिसकी हो जाए उसके हिसाब से लिखा जाता है। लेकिन आपने पहला प्रश्न संजय बारू जी से पूछा था, 10 वर्ष सत्ता ने मनमोहन सिंह जी का मौन भी देखा है, 6 वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार की मुखरता भी देखी है। इसके बीच में खड़े हुए मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप शक्तिशाली हाथों के हथियार बन जाएंगे तो बहुत संभव है कि हाथ एक दिन आपको भी नुकसान पहुंचाए। आप अपनी तटस्थता के विषय में स्वयं चिंतित होइए। बहुत अहम बात आपके लिए आगे आने वाला समय और कठिन है। और हमारे साथ धन्यवाद कुमार, एक बहुत आपने महत्वपूर्ण वाक्य पर अपनी बात खत्म की कि मीडिया अगर दूसरे हाथों ताकतों का हथियार बन जाएगा तो संकट हो जाएगा। प्रसून जोशी भी हमारे साथ हैं। प्रसून जोशी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, जाने माने सबके चहेते वो गीतकार हैं, फिल्म को संवाद लिखते हैं, कवि हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे काम करते हैं। जैसे वो CBFC के यानी फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। वो मैकान एरिक्सन नाम की एक बहुत बड़ी वैश्विक विज्ञापन एजेंसी के एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष भी हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। सरकार और बाहर लोगों के दिलो दिमाग सब पर राज करते हैं। प्रसून, आपकी राय में आज का मीडिया? राहुल जी नमस्कार। पहले तो TV 9 का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया आपने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। इस विषय को उठाने से पहले मैं यही एक आत्मनिरीक्षण की बात करूंगा कि हम ये उठा क्यों रही है, ये विषय आज हम क्यों उठा रहे हैं। क्या ऐसा क्या हो गया है कि अचानक हमें ये विषय उठाना पड़ रहा है। जैसे कि कुमार जी ने भी कहा और आपने भी इंगित किया, ये विषय उठाना बहुत आवश्यक हो गया है। पर क्यों आवश्यक हो गया? बात इतराज किस बात पे है कि कैसे कहा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है। कैसे पर इतराज है या क्या पर इतराज है। क्या हम ये सोच रहे हैं कि जो अंदाजे बयां है वो जरा खराब हो गया है, उसकी आचार संहिता गड़बड़ है, या जो कहा जा रहा है उसमें हमें कुछ निष्पक्षता या एक वजन नहीं दिखाई देता। तो कहीं मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, क्या ये आचार संहिता की बात हो रही है, मैनर ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है? अगर वो बात है तो देखिए वो तो एक समाज की सामूहिक चेतना ही डिसाइड करती है कि कैसे बोला जाएगा और किस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। किसको आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते हैं, किसे संसदीय भाषा बोलते हैं, किसे आप अनएक्सेप्टेबल भाषा बोलते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मुझे लगता है कहीं वो एक स्मोक स्क्रीन तो नहीं क्रिएट कर देती कि हम इस अंदाज पर, इस बात पर चर्चा करें कि लोग कैसे बोल रहे हैं। भाई ये कोई तरीका है ऐसी भाषा का प्रयोग करने का, मतलब क्या, ये कैसा युग आ गया है। या हम उसमें कहीं वो अवॉइड हो जाता है कि आज जो कहा जा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी की बात आ गई है। ये प्रामाणिकता का प्रश्न तो नहीं है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये प्रामाणिकता का प्रश्न आ गया मीडिया के सामने। क्या मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज कटघरे में खड़ी है? और अगर मीडिया की क्रेडिबिलिटी कटघरे में खड़ी है तो वो एक ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि आचार संहिता तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे बोले, लेकिन अगर कहीं क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क में आती है
तो वो क्रेडिबिलिटी क्यों क्वेश्चन मार्क में आई है, उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा है आज के, उसे कहीं ना कहीं निरीक्षण उसकी करने की। धन्यवाद। मैं बात करूंगा। धन्यवाद। हाँ, मैं आने वाला था। मैं पहले हेमंत परिचय करा दूं और इसका जवाब मैं हेमंत शर्मा से लूँगा जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। हेमंत शर्मा TV9 भारतवर्ष के निदेशक समाचार हैं और उनके साथ हमारे साथ बहुत एक बड़े, मैं कहूँगा कि मीडिया हमारे संपादक हैं, TV9 नेटवर्क के संपादक हैं एडिटर इन चीफ BV राव, और हिंदी के जाने माने और वरिष्ठतम संपादकों में से एक रामकृपाल सिंह जो नवभारत टाइम्स के बहुत लंबे समय तक संपादक रहे हैं। आप तीनों का भी स्वागत है और मैं चाहूँगा कि प्रसून जी ने जो भी बात कही, हेमंत आप उस पर अपनी टिप्पणी करें, जवाब। मैं प्रसून जी से बात शुरू करूँगा। प्रसून जी, आपने कहा कि वो वजह क्या है कि हमारी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे और कुमार जी से दोनों से इस बात पर सहमत हूँ कि मीडिया की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता अपने न्यूनतम स्तर पर है इस वक्त। लेकिन वो क्यों है? यह प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के बीच में है बंटवारा, जो समाज का बंटवारा हो चुका है, जो राजनीति का बंटवारा हो चुका है, जो फिल्म इंडस्ट्री का बंटवारा है, जो समाज के और बौद्धिक वर्ग में बंटवारा है, उसका शिकार हम भी हो गए हैं। फिल्म में जो बंटवारा हुआ है उसके शिकार आप हुए हैं। राजनीति में जो बंटवारा हुआ है और सफाई करने कुमार जी गए थे महाकवि पिछले 2 वर्ष पहले, वो वापस आ गए, उसका शिकार वो हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटी में बंटवारा हुआ है, अगर हम इस पर विचार करें तो हम भी समझ जाएंगे कि मीडिया में कि यह दशा क्यों हुई है, क्योंकि मीडिया इसी समाज का हिस्सा है, वह किसी दूसरे ग्रह से नहीं आता। हम ये जो सोसाइटी है, जो राजनीति है, जो बौद्धिक वर्ग है और जो व्यवसाय है, उससे परे नहीं हो सकते। राहुल जी। हेमंत, ये महत्वपूर्ण बात है आपने याद दिलाया कि मीडिया कोई द्वीप नहीं है जो बाकी दुनिया से, समाज से कट कर एक शुद्धता के अपने एक अलग लोक में रहे। और समाज की चूँकि आपने बात की तो मैं समाज की एक विशिष्ट वर्ग की बहुत विशिष्ट प्रतिनिधि के पास चलना चाहता हूँ, सुश्री विदुषी सोनल मानसिंह जी के पास। सोनल जी को भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सोनल जी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित राज्यसभा की माननीय संसद सदस्य हैं। समाज के बंटवारे की बात और मीडिया जो में हो रहा है, उन दोनों को लेकर आप कैसे देखते हैं? मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूँगी। आप ये जो एक श्रृंखला बना रहे हैं उससे थोड़ा एक हटके, बंटवारा तो समाज में होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। जब से समाज स्थापित हुआ व्यक्तियों के समूह को लेकर, हजारों वर्ष पहले होगा, तो बंटवारा तो होता ही रहता है, क्योंकि तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। और जो हम बात कहते हैं परसेप्शन, कि एक ही वस्तु को, एक ही घटना को जो व्यक्ति देखता है वो अपने अपने परसेप्शन से देखता है, समझता है, बताता है। तो इसीलिए वही प्रख्यात है कहानी है, हाथी के अंधा ने, इसने 4 अंधों ने देखा तो क्या देखा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने 4 एक पैर, किसी ने सूंड। मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत ही कम शब्दों में कि जब विकार पैदा होता है, जब किसी चीज़ को जंग लगना शुरू होता है, इसको हम कहते हैं विकार। विकृति, प्रकृति सुकृति, कृति प्रकृति से विकृति जब होने लगती है, जैसे प्रकृति की विकृति हम देख रहे हैं, साइक्लोन इतने सारे आ रहे हैं, जहाँ 2 आते थे वार्षिक वहाँ भी 10 आ रहे हैं, धरतीकंप हो रहे हैं, जमीन खिसक रही है, समुद्र में सुनामी आ रही है, क्या क्या हो रहा है। तो विकृति जब बढ़ने लगती है समाज में, जो हम कहते हैं प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण बढ़ने लगता है। अलग अलग विचार होना चाहिए, लेकिन जब वो हावी हो जाता है, जब उससे वायोलेंस आ जाती है कि नहीं मैं ही सही हूँ, तुम नहीं हो। और दूसरा कि इफ़ वी बिकम अ गेम, इजी गेम, कि भाई कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कोई मुझे और लाभ मिल रहा है, तो क्यों न मैं उनका पक्ष ही लेके चलूँ। ये बहुत सिंपल बातें मैं बता रही हूँ, लेकिन जो विकार और विकृति 2 शब्द हैं, ये मुझे हमेशा भयावह लगे हैं। और उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे बचा जाए, ये बात आज सोचनी चाहिए। और एक छोटी बात मैं जोड़ के ख़त्म करती हूँ कि जब हमारी संस्कृति को
आज का मीडिया, प्रेस वगैरह में इसको कोई स्थान नहीं है। तो संस्कृति में जो दर्शन है, उसके जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारा तो सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी हजारों वर्ष पुरानी है, जिस पे हमारी धरोहर है, उस पे हम इतना नाज करते हैं, इतना गर्व करते हैं, उसकी बात कहाँ होती है? तो जब तक ये बातें इसके साथ शामिल नहीं की जाएंगी, तब तक जो एक ऋजुता है, कोमलता है, इसका जो एक अच्छा पक्ष है, जो आपको समझा बुझा के बताता है ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, तो जो सेतु बनना चाहिए समाज और समाज के बीच में, समाज और समाज यानी क्या, समाज के कई पक्ष हैं, उनके बीच में सेतु बनने का काम मीडिया और पत्रकारों का है, पत्रकारिता का है। राजनीति वो सब छोड़ दीजिए, मैं इसकी बात नहीं कर रही। तो उसमें यदि विकार आता है, विकृति आती है, तो आत्म मंथन करना आवश्यक है। और जो सबसे पहले का नवनीत कुछ निकले तो बहुत अच्छा होगा, और नवनीत फिर बांटा जाए, खाया जाए, उसका स्वाद लिया जाए, तो हमें भी कुछ मिलेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सोनल जी। मंथन होता है तो नवनीत तो निकलता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था, उसमें कुछ विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, तो कुछ हमारा विष भी बाहर निकले, ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बातें कही। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे और हमारे मित्र जुड़ गए हैं, और सबसे पहले आप जान लें कि वो कौन कौन हैं, और फिर हम उनके पास चलेंगे। हमारे साथ संजय बारू जी अब जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हमारे साथ गौरव वल्लभ जी हैं, हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, देश के जाने माने शिक्षाविद, रंजना कुमारी जी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब हैं, पवन दुग्गल हैं जो विशेषज्ञ हैं तकनीक और कानून के, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, और सीबी पांडे जी हैं। राजेश कालरा का नाम मैं लेना भूल गया, क्षमा करिएगा राजेश कालरा एशिया नेट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उद्यमी भी हैं, और संपादक रहे हैं टाइम्स इंटरनेट के, और उद्यमी भी रहे हैं और स्वयं संपादक, और उन्होंने दूसरे पक्ष भी मीडिया के देखे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु, आपने समाज, संस्कृति और जो मंथन की बात अभी सोनल जी ने कही, संस्कृति, उसको आप स्वयं पत्रकार भी रहे हैं और आपका बहुत करीबी संबंध है। तो आज का मीडिया और इन तमाम वर्गों से उसकी स्थिति के बीच में जो ये संकट पैदा हुआ है, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब हम मीडिया के विषय में बात करते हैं तो मेरा मानना है उसके दो पक्ष हैं। एक होता है विषय वस्तु, सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट, दूसरा है प्रस्तुति। अब दोनों को अलग अलग ढंग से देखना होगा। यदि हम पहले प्रस्तुति पे बात करें तो प्रस्तुति के भी दो पक्ष रहते हैं, शब्द और भाषा। जहां तक शब्दावली की बात है, मर्यादा की बात है, तो मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं पिछले कुछ दशकों में उत्तरोत्तर गिरावट आई है, और यह गिरावट समाज के सभी तबकों में है। आप देखें कि हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, कार्य संस्कृति हो, आप व्यक्तिगत वार्तालाप करते होंगे तो भी आपको लगता होगा कि वह मर्यादा जो 2-3 दशक पहले थी वह नीचे आती जा रही। शब्द भाषा की जब हम बात करेंगे तो मुझे एक बात को लेकर और थोड़ा सा कष्ट या चिंता होती है। कुछ भाषा में मिश्रण जरूरत से ज्यादा हो गया है। जिन चीजों के लिए सीधे सीधे हिंदी भाषा में स्पष्ट शब्द अवेलेबल है, इवैक्यूएशन शब्द हम प्रयोग करते हैं, बचाव कार्य वहां पे उपलब्ध है। हम कहते हैं कि रेस्क्यू वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं एवेलांच हो गया, उसके लिए हिमस्खलन शब्द उपलब्ध है। हमें बचपन में याद है समाचार पत्रों में जो शब्द निकलते थे उनसे लोग सीखते थे, और तमाम ऐसे शब्द हैं, राहुल जी आपको भी पता होगा, हेमंत जी को भी पता होगा, जो कि पत्रकारिता से निकले और समाज, राजनीति और संविधान में जाकर स्थापित हो गए। और आज इसका बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। मुझे लगता है घनघोर व्यावसायिकता के चलते हुए हम बहुत छिछले स्तर के शब्दों का भी इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, शायद इससे लोकप्रियता आ जाए। दूसरा मैं कारण ये मानता हूं तकनीक, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया तो वहां एक स्थापित नियंत्रण या मर्यादा की जो सीमा थी वो समाप्त हो गई। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है। आपने देखा कई बार गाली गलौज तक लिखा हुआ होता है। तो मुझे लगता है इन दो कारणों से भाषा, मर्यादा और प्रस्तुतिकरण में अंतर आया। अब मैं आता हूं विषय वस्तु, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात होती है कि साहब बड़ा आवश्यकता पड़ी है कि आज मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। मैं थोड़ा मत भिन्न रखूंगा। पत्रकार बुद्धिजीवी होता है, और मैं पूरी विनम्रता पर उतनी दृढ़ता से कहता हूं, बुद्धि बगैर विचारधारा के हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति है। बुद्धि एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होती। तो विचार रहता था, परंतु आज जब प्रसून जोशी जी ने कहा क्यों आवश्यकता पड़ी, हमें भी बचपन में याद है मर्यादा क्या रहती थी।
समाचार पत्रों में सांप्रदायिक दंगों के लिए हम पढ़ते थे एक समुदाय के समूह पर दूसरे ने किया, ध्यान रखा जाता था कि भावनाएं न बढ़ती। मगर जातियों के आधार पर हम जाति का नाम लेके पढ़ते थे, इस जाति के लोगों ने उस जाति को मार दिया, यानी वहां पर भावना भड़काने का पूरा प्रयास रहता था। 80 के दशक के अंत में जब हम स्कूल में पढ़ते थे 80 के दशक में, उस दौर में बोफोर्स ने एक बड़ा काम किया जिससे कि बदलाव आ गया और लगा कि मतलब पत्रकारिता ने सरकार बदल दी। परंतु उसी के साथ आप याद करिए जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वो किसी को ध्यान ही नहीं आता है क्या। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन गोलियां चली हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और सभी समाचार पत्रों ने कहा कि वहां कुछ नहीं हुआ। और अगले दिन सुबेरे एक प्रमुख अंग्रेजी और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र के फ्रंट पेज के ऊपर कारसेवकों की गुंबद पे चढ़े हुए तस्वीर थी। क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं उठा, मतलब इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया कि वहां कुछ हुआ नहीं, और अगले दिन सबके चेहरे शर्म से लाल हो गए जब फोटो आई में क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं उठा। मंडल को लेकर आप देखिए उस समय पूरी दिल्ली का मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया क्या बोल रहा था, और हकीकत में देश में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था जिसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए मैं मान रहा हूं कि जहां तक बदलाव की बात है तो बहुत सारी चीजों को लेकर यह भी विचार करने का विषय, और जो ये मैं आज स्पष्ट बात करता हूं कायदा साहब, एक हस्तक्षेप है क्या कोई किसी प्रकार का सत्ता के साथ कोई समन्वय या ये बात, मतलब साफ साफ कोई खुशवंत सिंह जी लिख रहे हैं कि मैंने ये सेवा की, बदले में मुझे प्रधान संपादक बनाया गया, मैंने प्रधानमंत्री बनाने में किया। सुधांशु जी, आवाज आपकी थोड़ी कट रही है, हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जुड़े। हालांकि एक बड़ी बात हुई नहीं, एक मिनट पहले मैं परिचय करा दूं, दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ दो तीन और बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं। शायद हम सब में सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो लगभग 50 साल से सक्रिय पत्रकारिता जिन्होंने की है, अशोक टंडन जी, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सूचना सलाहकार भी रहे हैं और लंदन में पीटीआई के रहे हैं, ब्यूरो चीफ रहे हैं। तो अशोक टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सारे मीडिया जगत के जो देखने वाले उनके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टल है इंडियन टेलीविजन.com समूह के एडिटर इन चीफ अनिल वानमारी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों अपने मित्रों से बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले चलते हैं राजेश कालरा के पास। राजेश को मैं 1 मिनट, सुधांशु जी ने जो कहा है मैं उसकी बात कर लूँ। हाँ जल्दी, लेकिन फिर राजेश के 1 मिनट में बात करूँगा कि सुधांशु जी की इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी विचारवान आदमी विचार निरपेक्ष नहीं हो सकता, पत्रकार भी निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि निष्पक्षता एक अवस्था है, निष्पक्षता अवस्था नहीं एक पॉलिसी है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पत्रकार की पॉलिटिकल दृष्टि होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए।